नमस्ते। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन अभिवादन रूल्स एंड रेगुलेशन के कार्यक्रम में। फ्रेंड्स, स्पेसिफिकली आई एम एड्रेसिंग द ऑल PG PhD scholars of Rasas of entire country studying, passed out, and really my colleagues as a faculty or the practitioners. So we have interacted on the Drug and Cosmetic Act 1940 and specifically chapter 4A, and that is from section 33 from A to O. Now the executive part is the rules. Initially it was known as the Drug and Cosmetic Rules 1945, but now it is the two different: Drug Rule 1945 and Cosmetic Rule 2020. So now it is not Drug and Cosmetic Rule 1945, it is Drug Rules 1945 and Cosmetic Rules 2020. And even after Cosmetic Rules 2020, there are the amendments proposed, and even the Drug Rule 1945 amendments are proposed. It should be, because it is a dynamic process and all the technological development must be added into the law enforcement, so that the common man, manufacturers, regulators, everyone should be benefited with the advancement of the techniques, and those advancement of techniques should be recognized under the rules and regulations. Then therefore they open a suitable way for the adaptation of the technology through the legal route. इस बीच आपके बड़े उत्साहवर्धक मैसेज आ रहे हैं। कोई बोलता है कि सर आप एम फार्मा आयुर्वेद और बी फार्मा आयुर्वेद की कंडीशन और स्टेटस और उनके लीगल स्टेटस अपॉर्चुनिटीज़ पर बात करिए। फिर कभी सुझाव आ गया कि नहीं, अभी आप सर API के क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करिए। फिर मेरे किसी अन्य मित्र ने कहा कि नहीं, आप आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया को पकड़िए कि उसमें अभी तक क्या क्या शो किया गया है, कैसे शो किया गया है, और इनमें से किसी का भी सेकेंड एडिशन क्यों नहीं आ रहा है, API चाहे FI का। मित्रों, ये एक दिन का कोई टॉपिक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि ये वर्षों का कार्यक्रम है। जी हाँ, सिलेबाई और समसामयिक इशूज़ को पकड़ने में ये एक दिन में सभी कुछ नहीं हो जाता है। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि थोड़ा धैर्य रखिए। आपकी हर डिमांड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर तथ्य सहित आपके पास आऊँ, तथ्यों और तर्कों को आपके सामने रखूं, जिससे कि आप उनका आकलन कर सकें। I shall talk with you on the basis of the facts and the evidence of the past and the present and what should be in the future of all these things, the recognition and the opportunities of the Bachelor of Pharmacy in Ayurveda and the Master of Pharmacy in Ayurveda, even the diplomas of Pharmacy in Ayurveda. And of course, there are questions raised by some of my good friends about the API and the AFI. When you are a teacher, then you must be a teacher. And a teacher duty is to speak truth, fact and evidence. And that I am trying to do it. And in the way all of you are encouraging, motivated, I am grateful to you all. Thank you. I was not expecting कि आपके इतने सारे सवाल आएंगे और इस तरीके से भी लोग कहेंगे कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं ऑथेंटिक बोल रहे हैं, और आप जो भी आगे बोलेंगे ऑथेंटिक ही बोलिए। इस पर बहुत सारे डिसीजंस हमें लेने होते हैं और हम लेंगे। आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी लोगों के आ रहे हैं जिनका कि मैं आदर कर रहा हूं, जिनको मैं जानता नहीं हूं व्यक्तिगत रूप से। उनकी मेल आईडीज़ को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ, ना ही उनमें कहीं कोई नाम आ रहा है।
तो मैं ये अपने सेल्फ एप्रिसिएशन में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एक शुरुआत हुई है पिछले 1 महीने में, आप लोग जैसे इसके साथ जुड़ रहे हैं, द वे यू पीपल आर कनेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द एंड रेजिंग द इश्यूज is encouraging and motivating we all to work more in this direction. So friends, after the chapter 4A, now we are starting Drug Rules 1945 and the parts related to the ASU drugs. When today we are recording, we are moving in advance. Today is the 24th July and you will get on your screen it somewhere in the month of August in the end. We are recording everything 1 month earlier to the scheduled date. Just today I met with a researcher of the Vienna of Indian origin and she just discussed with me more than 1 hour about the situation of the Drug and Cosmetic Act, rules, phytopharmaceuticals, role of TKDL, stages of the SOA recognition, and the patent and the proprietary medicines. Someone has referred that researcher, Austria-based researcher of Indian origin, to contact me in this regard. She is working on a project of the basically on the SOA and she is in Banaras today. Fortunately, good people always recommend good people. So Professor Kishore Patwardhan recommended her to have an interaction with me and I said okay, we will do it on 24th July and we did it. So the level of the awareness about these rule regulations and in the European countries is much awaited. Her visiting card is in my pocket and I know remembering her name, but the institute for which she is working, that I just forgotten, and visiting card is not with me. But what is my point before you? Be aware, world is looking to you. Sirs and madams, sir, world is looking to you. World is willing to know the Indian regulations and tallying them with their own regulations, whether these things are in equivalence or not. That researcher asked me about the GMP condition, the reality of the GMP condition, and what is the difference. Are you satisfied with the GMP conditions notified by the ASU? Her question was. So, this is the high time. If we wish global Ayurveda, we have to work on these. We have to have first-hand information about the Indian laws dealing with the ASU medicines, specifically all. I tried her to convince and things in a very optimistic way, really, believe it. Because when you are talking on international arena, then you have to keep in mind that you have to respect all the treaties of the government of India. You have to respect all the international relationship and the international policies of the government of India. So here, if government of India is promoting SOA, then certainly the SOA is something which need attention. And there was a many questions. She has interviewed a person from Kerala and then the Karnataka, and that is going on a research project. Okay, fine. So when we are talking about the Drug Rule 1945 and when I say ASU medicine,
then somehow it is in the mind of the people that this ASU medicine is the Ayurvedic Siddha Unani medicine, maybe Ayurvedic Siddha Sowa Rigpa Unani medicine. This is the reason why I am quoting this interview before you. And somehow, somewhere I read that in the Ayush acronym, the S is now double, but one S is silent. It is Siddha and Sowa Rigpa. Because Sowa Rigpa has been recognized, and personally I had visited the centers in Dharamsala, in the Sikkim, Gangtok, in the Sarnath. And of course, there are a lot of similarities and there is some differences too. And things are going on in accordance. And hopefully, this due time of the development is desired to the Sowa Rigpa also for the development of the human resource. So a day will come when this ASU medicine rules regulation from Rule 151 to Rule 170 may be notified as this rule is applicable to the Sowa Rigpa medicines too. Now what we are going to discuss is the applicable only to the ASU medicine, Ayurvedic, Siddha and Unani medicine. But this is the just coincidence. I have just started recording of the drug rule 1945 today, and today I just had interaction with that particular researcher who is working on the Sowa Rigpa, and her mind is full of many questions, and I satisfied, okay, I answered the questions. Really. बिल्कुल ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है, चर्निंग ऑफ द योर ब्रेन हो जाता है जब आपसे ऐसे ऐसे सवाल और बिना आपकी जानकारी के पूछे जाते हैं. लेकिन ठीक है, 22-23 साल से यही तो कर रहे हैं ना, कर लेते हैं, बता ले जाते हैं. चलिए, तो किस हिस्सों में ये बटा हुआ है ड्रग रूल, कितना पढ़ना है? तो क्या रूल 1 से 150 बेकार है आपके लिए कि हम 151 से ही शुरू करें? जी नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं है. लेकिन आपके पास समय है, मेरे पास समय है, तो उसको पढ़ लीजिए. कोरिलेशंस आएंगे वहाँ पे. लेकिन रूल 51 और रूल 170 तक जरूर पढ़ना है. मस्ट बी नो है ये, शुड बी नो नहीं है, मस्ट बी नो है, मस्ट नो है. राइट? सो देयर आर द सम पार्ट्स, part 1 to part 19. And Ayurvedic ASU, Ayurvedic Siddha Unani, or a day will come Ayurveda Siddha Sowa Rigpa Unani. But today at the moment it is the ASU, Ayurveda Siddha Unani. These are applicable on these. And this applicability is in the 4 parts. Part 16, Part 17, Part 18, Part 19. And as per the rules, it is going on Rule 151 to Rule 170. And afterward, there are schedules. And schedules, number of schedules are also from Schedule A to Schedule Z. And if you are going to discuss, then we must discuss Schedule A, which consists of a lot of forms, starting from Form 24 to the Form 50. Running from 26C, 48, Form 49, and what are these and how it is being issued and what are the criteria. Yes, you have this first information if you are working as a regulator, or if you are working as a in CDS, your lateral body or the horizontal body, lateral body, what's going on, and the budget of the 150 crore. They are advertising some post and then they are inviting something. Okay, fine. Lateral body. Why not a separate CDSCO for Ayush? If Ministry of Ayush may be separate, Ministry of Health may be separate. Then why CDSCO is the same? When the characters of these two drug system is different, two drugs are different. Okay,
बहुत बहस हुई है इस पर। फाइटोफार्मास्यूटिकल के भी इशू पर बहुत बहस हो चुकी है, और मैंने आज अभी वियना ऑस्ट्रिया के उस रिसर्चर को यही कहा कि हम फाइटोफार्मास्यूटिकल का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बहुत तेज़ स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करती है। तो उससे पूछा क्यों, मैंने उसका उत्तर दिया कभी आपसे भी एक सेशन फाइटोफार्मास्यूटिकल्स का कर लेंगे। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि शेड्यूल ए के फॉर्म्स भी आपको जानना होगा, फिर आपको शेड्यूल एम और शेड्यूल टी का डिफरेंस भी जानना होगा, फिर आप शेड्यूल बी से पढ़ते हुए शेड्यूल जेड तक जाएंगे, और शेड्यूल बीच में शेड्यूल वाई भी आता है, फिर बीच में शेड्यूल वाई वन भी आता है। इसलिए मुझे फाइटोफार्मास्यूटिकल्स याद आ गए, क्योंकि शेड्यूल वाई वन और फाइटोफार्मास्यूटिकल का बहुत अच्छा गहरा समवाय संबंध है दोनों का। फिर किसी किसी की किस्मत होती है, ऐसी किस्मत मैं रूल 170 को मानता हूँ, उसमें जो कुछ भी नोटिफाई करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर स्टे लग जाता है। यस, there are the two chances when the rule 170 notified and there are the stay or the suspension or the kept in abeyance। तो रूल 170 अभी तक भरा ही नहीं है। रूल 170 में पहले आया GCP गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, केप्ट इन एविडेंस। रूल 170 में फिर नोटिफाइड हुआ 2018 में 24 दिसंबर को, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, उस पर हाई कोर्ट का स्टे आ गया। तो हमें एक बड़े सब्र के साथ विथ पेशेंस वी विल डिस्कस ऑल दीज इश्यूज विथ ईच अदर, and after the completion of the Drug and Cosmetic Act chapter 4A in the 8th interactive session, टोटल 8 इंटरेक्टिव सेक्शन हुए हैं उस पर, अभी आपको वो अगस्त तक मिलेंगे। और आज मैं प्रायर रिकॉर्डिंग के क्रम में ड्रग रूल 1945 पर शुरुआत कर रहा हूँ। और ड्रग रूल 1945 आपका रूल, हम लोगों का रूल 151 से शुरू होगा, रूल 170 तक जाएगा। फिर उसके बाद हम शेड्यूल्स पर जाएंगे, और जिन शेड्यूल्स को हम निश्चित रूप से डिस्कस करेंगे आपके साथ, शेड्यूल ए, शेड्यूल टी, शेड्यूल T1, शेड्यूल वी एंड शेड्यूल वाई, शेड्यूल Y1, and of course if anything more regarding the ophthalmic positions and many more, we will discuss all these things। और उम्मीद करता हूँ कि अभी जब मैं 4 टांग का जीव था, मतलब 2 टांगें मेरी और 2 वॉकर की, उस पर मैं चल रहा था अपने फ्रैक्चर के बाद। शायद फ्रैक्चर पीरियड की ये देन है कि ये टाइम यूटिलाइज होने लगा, और आपसे इसलिए जो भी ईश्वर करते हैं अच्छा करते हैं, और आपसे मैं लगातार वार्ता कर रहा हूँ। तो अभी मैं 4 टांग से 3 टांग पे आ गया हूँ, मतलब छड़ी के सहारे चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 महीने में 2 पे आ जाऊँगा, और जब मैं फिर से 2 टांग पे था, तो फिर जब अपने 2 पैरों पर आ जाऊँगा, खड़ा हो जाऊँगा, तब मैं बोर्ड पे होऊंगा। और जब मैं बोर्ड पे होऊंगा तब आपके सामने मैं इन चीज़ों की चर्चा जो बेहतरी तरीके से कर सकते हैं कि हमारे समझ में आए, आपके समझ में आए, हम लोग एक दूसरे को समझा सकें, वो बोर्ड पे ही संभव होता है। ये सीटिंग पोस्चर थोड़ा सा आपके लिए भी प्रॉब्लम की विषय है, मेरे लिए भी है, लेकिन क्या करें, अभी थोड़ा समय और लगेगा। तो वर्ड बाय वर्ड जाएंगे, रूल 151 से 17 तक, देन द शेड्यूल्स, और बहुत लंबा समय लगने वाला है मित्रों, एटलीस्ट 4-5 मंथ, क्योंकि मैं लगातार इस पर इंटरेक्शन करता हूँ अपने PG PhD स्कॉलर्स के साथ, और हर फ्राइडे को हम क्लास लिया करते थे। तो 5-6 महीने तो लग ही जाते थे इनको कंप्लीट करने में। तो आपकी क्लास तो और कम है, वो क्लास तो 1 घंटे चलती थी तब कम पढ़ते थे, आपके साथ तो आधा घंटा बात कर लो तो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, जो हमारी टीम है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कोर लर्नर्स हैं, वो कहने लगते हैं कि सर यूट्यूब कोई भी आधा घंटा से ज़्यादा नहीं देखता है, थोड़ा और कम बोलिए। वो तो 20 मिनट में ही खड़े हो जाते हैं इशारा करने के लिए कि नहीं बस अब शांत होइए, अब इसको पैकअप करिए। तो अभी आप एक इंटरव्यू देख रहे होंगे प्रीति टमटा का, उन्होंने तो रिकॉर्ड बना दिया है, क्लेम द क्लिनिक्स
अब जब तक ये जाएगा आपके सामने तब तक क्लेम द क्लिनिक्स 1000 व्यूज़ तक पहुंच जाएगा, आई होप सो। अभी तो 24 घंटे में 380 पहुंचा हुआ है और ये सीरीज़ पूरी चलती रहेगी। और फिर वही नायक से महानायक की बात अगर करें तो एक स्टोरी सुनाने की इजाज़त चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ, एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ मैं आपको। तो नायक से महानायक, जैसे कि महानायक को याद आ गए अमिताभ बच्चन जी, माननीय सांसद भी रहे हैं। और जब वो इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय बीएससी का स्टूडेंट था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और मैंने देखा था कि जब हमारी जूलॉजी की मैडम जो हमारी क्लास ले रही थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने सुना कि अमिताभ बच्चन यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो मैडम का नाम मुझे याद है लेकिन मैं अब बताऊँगा नहीं। मैडम ने क्लास छोड़ा और चली गई अमिताभ बच्चन को देखने। और तो ये क्रेज़ था अमिताभ बच्चन का। लेकिन हम भी हाँ ठीक था कि बहुत सारा पूरा इलाहाबाद शहर, आज का प्रयागराज इलाहाबाद के मतलब दीवाना हुआ था अमिताभ बच्चन साहब का। और उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में यही लिखा, कहा सबसे पहले, ये जो मेरे कपड़े हैं मेरे अपने हैं, मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपने खुद के डायलॉग बोल रहा हूँ। और अमिताभ बच्चन जी हेमवती नंदन बहुगुणा को हराए थे। चर्चाएं कभी कभी आ जाती हैं इस तरीके की, और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे ट्रेनिंग शेड्यूल में है कि आप कोई भी इंटरेक्शन कर रहे हैं तो 20 मिनट के बाद थोड़ा सा ज़रूर एक इंटरवल दिया करें। तो अमिताभ बच्चन जी का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, केबीसी का कौन बढ़ेगा करोड़पति का, बस कहीं जाइएगा मत, हम फिर हाजिर होते हैं। तो आप भी हमारी बात YouTube पर सुनते रहिए, कहीं जाइएगा मत। हम हमेशा हर सोमवार को रूल द रेगुलेशंस के साथ आपके साथ होंगे। बुधवार शुक्रवार को ब्रश द बसेस के साथ होंगे। वो भी बड़ा अजीब एक अच्छा कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। ब्रश द बुसेस की जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर करिए। और फिर एक जो इंटरव्यू की श्रृंखला शुरू हुई है, जिसमें आपके सामने एक से बढ़कर एक हमारे को लर्नर्स आने वाले हैं। सबके अपने अपने अलग क्वेश्चंस हैं, अपनी अपनी अलग अलग विधाएँ हैं। एंड बी रेडी फॉर द मोर इंटरेक्टिव एंड द वेरी इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू सेशंस इन फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, तो फिर अभी वो कहानी आ रही है कि नायक से महानायक। चलिए इस पर बात करते हैं 2 मिनट कि नायक और महानायक में क्या अंतर है, और क्यों अमिताभ बच्चन महानायक हैं और शाहरुख खान नायक हैं। ऐसी बस उदाहरण है। इससे अपने खुद के बारे में सोचिएगा, खुद को तौलिएगा, अपनी परिस्थितियों से लड़िएगा। अगर आप कहीं संकट में हैं या आपको जो चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा हो और आप तथाकथित डिप्रेशन और स्ट्रेस से गुजर रहे हो, तो हमारी इस कहानी को सुनिए। राजेश खन्ना साहब नायक थे। एक शेड्यूल आया, एक सीरीज चली, एक समय तक चले, वक्त पूरा हुआ, बदल गया। दिलीप कुमार साहब नायक थे, एक वक्त पूरा हुआ, चले गए। मैं अब की बारी ये स्टोरी खाली ज़रा फिल्मों से ले रहा हूँ। एग्जाम्पल्स मेरे पास एकेडमिया के भी हैं, क्रिकेट के भी हैं, इंडस्ट्री के भी हैं कि कहाँ से लोग कैसे डूबे और फिर कैसे उठे, और डूबे तो डूब ही गए। इंडस्ट्री के भी हैं, लेकिन समय समय पर आज खाली फिल्मी दुनिया से रहते हैं क्योंकि ज़रा जल्दी समझ में आता है। तो शाहरुख खान नायक है, एक ग्राफ चल रहा है, चलता जा रहा है। सलमान खान नायक है, एक ग्राफ है, चलता जा रहा है। जरा अमिताभ बच्चन साहब के कैरियर को देखिए, उनके साथ के थे धर्मेंद्र, वो भी चले और बस खत्म। जरा अमिताभ बच्चन को सोच देखिए, एक कैरियर चला, ऊंचाइयों तक पहुंचा, शीर्ष पर पहुंचे, और उनकी फिल्म आई मर्द। उसके बाद फ्लॉप फिल्में आना शुरू हुई, गिरना शुरू हुआ ग्राफ, शून्य पर पहुंच। ये हालत हो गई कि आप सभी जानते हैं कि बैंकरप्ट हो गया। अपने डोमेस्टिक हेल्प को अपनी तनख्वाह नहीं दे पाते थे वो। इवन कि धीरू भाई अंबानी ने उनको कुछ पैसों का ऑफ़र दिया। ये सब चीज़ें मैंने उनके इंटरव्यू में से कुछ लिया और कुछ कहीं और के इंटरव्यू में लिया, वो आपको बता रहा हूँ। तो अमिताभ बच्चन साहब एक इंटरव्यू में बोलते बोलते बोले कि मेरी ये हालत थी कि धीरू भाई अंबानी ने मुझे बुलाया और कहा कि अमिताभ तुम ये पैसे लो, अपने घर का खर्चा चलाओ। तो मैंने कहा बाबूजी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए बस, और मैं मेहनत करूँगा, मुझे मेहनत से कमाने दीजिए। और अमिताभ बच्चन साहब ने वो पैसे धीरू भाई अंबानी के नहीं लिए।
जबकि उनके घर में उनके काम करने वालों का वो वेतन भी नहीं दे पा रहे थे। चलिए, फिर किसी ने रिकमेंडेशन की कि अमिताभ बच्चन साहब को फिल्मों में दोबारा काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी, ABC। तो दोबारा काम करने आए और फिर अपने पुराने प्रोड्यूसर्स के पास गए, यश चोपड़ा टाइप। और तो आदित्य चोपड़ा जी, उस समय उनके बेटे आ चुके थे, और आदित्य चोपड़ा जी ने उनको काम दिया। तो शाहरुख खान की फिल्म थी, अमिताभ बच्चन साइड में थे और शाहरुख खान सेट पर बहुत लेट आते थे। अमिताभ जी वहाँ पर पंक्चुअलिटी में 3-3 घंटा वेट करते थे। तो एक दिन उन्होंने डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा को कहा कि ये शाहरुख को कहो भाई टाइम पर आए, मैं 3-3 घंटा वेट करता हूँ। तो आदित्य चोपड़ा ने कहा कि सर, इस फिल्म के हीरो शाहरुख हैं, आपको उनके हिसाब से ढलना होगा। मैं तो, आपकी तो यहाँ पर जगह ही नहीं थी इस रोल में, तो मैं बोमन ईरानी से बात कर चुका था। मेरे पिताजी ने कहा तो मैंने आपको ले लिया। सर, आपको शाहरुख खान के हिसाब से चलना होगा। अमिताभ बच्चन जैसा सहृदय व्यक्ति उसको स्वीकार किया और शाहरुख खान का सेट पर 3-3 घंटे वेट किया। और अमिताभ बच्चन की दूसरी पारी शुरू हुई और इस दूसरी पारी में वो चलते हुए आगे गए, फिर फिल्में हिट होने लगीं और उनकी हिट फिल्मों की श्रृंखला में फिर उनको एक KBC मिला। KBC ने उनको सुपर हिट किया। बस बात KBC से ही शुरू हुई थी और एक कहानी आपके सामने रखने का मुझे अवसर मिल गया। बड़ी हिम्मत भरने वाली कहानी है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस कहानी से बहुत बहुत उत्साहित होता हूँ और इसको अपनी आइडियल कहानी स्वयं के लिए भी मानता हूँ। KBC से अमिताभ बच्चन साहब शुरू हुए, फिर दोबारा उसके सोच चले, फिर फिल्में भी आई एक से बढ़कर एक, जिनमें उनके अभिनय का लोहा माना गया। पिंक रही, पिंक के बाद एक और है जिसमें उन्होंने वो किसी एक डिजीज बूढ़े का रोल किया था। तो अमिताभ बच्चन साहब इसीलिए महानायक कहे जाते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि वो शीर्ष से शून्य पर आए, एकदम शून्य पर आए। बैंकरप्ट, डोमेस्टिक हेल्प को देने के लिए तनख्वाह नहीं, फिर वो शीर्ष पर पहुंचे और शीर्ष पर बने हुए हैं। आज की तारीख में बने हुए हैं। ढेर सारे मीडिया से, छोटे टेलीविज़न पर आने के लोग बेइज्जती समझते थे कि नहीं, छोटे टेलीविज़न पर काम नहीं, छोटे पर्दे पर काम नहीं करेंगे, मतलब स्मॉल टीवी से। लेकिन उसी एक पर्दे पर काम करके वो कहाँ पहुँचे और क्या क्या फिल्में दी। तो इसलिए कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन महानायक हैं और बाकी सब लोग नायक हैं। मित्रों, ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि यदि आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ PG में, या आपका कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन नहीं हुआ, या आप कहीं डायरेक्टर जनरल नहीं बन पाए, आप समझ रहे होंगे इशारा मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है, स्वीकार है। लेकिन बात उतनी ही है कि इस शीर्ष से शून्य और शून्य से फिर शीर्ष पर पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं और उन रास्तों को आप चलिए, ढूंढिए, फिर से आप मुकाम पर पहुँचेंगे। और मैं इसमें अमिताभ बच्चन साहब को एक आइडियल मान के चलता हूँ। ये कहानी जब मैंने 2 हिस्सों की कहानी जोड़ी, तो मैंने 2 हिस्से जोड़े। एक अमिताभ बच्चन का खुद का इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने धीरू भाई अंबानी वाली बातें बताई और ABCL वाली बातें बताई, और एक दूसरा इंटरव्यू सुना जिसमें कि अमिताभ बच्चन जी को बताया जा रहा था कि वो कितने बड़े क्या क्या परिस्थितियाँ उन्होंने देखी हैं, तब उसमें आया। अमिताभ बच्चन ने स्वयं कभी नहीं कहा उस इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू मैंने उनका सुना, कि मैं महानायक हूँ। नो, नेवर। इसी में एक और कहानी आ जाती है कि मैं आपको सुनाऊँ गुलजार साहब और जावेद अख्तर की, लेकिन वो फिर बाद में, फिर कभी, लंबा हो रहा है। हमारे प्रोड्यूसर खड़ी है, कह रही है कि बस अब हो गया है समय। इस अपने प्रोड्यूसर से भी आपको मिलवाएंगे जल्दी ही एक इंटरव्यू सीरीज़ में। चलिए मित्रों, रूल 151 आपके सामने अगले मंडे को होगा। मतलब कि आप तो मंडे को ही सुनेंगे, लेकिन कब आएगा ये शायद किसी डेट पर शेड्यूल होगा। हमारी टीम इसको शेड्यूल करेगी। हम लोग शुरू करते हैं। आप भी अपनी किताब न खरीदने हो तो ख़रीद लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा किताब की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मेरे किसी कार्यक्रम में आपको किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप रूल द रेगुलेशन में पढ़ रहे हो तो आपको किताब खोल के बैठना पड़ सकता है अगर आप हर चीज़ को समझना चाहते हैं। तो चलिए, रूल्स द रेगुलेशन सीरीज़ में एवरी मंडे को जो 6 बजे आपको मिला करेगा, रूल 151 की शुरुआत
अगले मंडे से करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप अगर शीर्ष पर हैं तो शीर्ष पर बने रहिए, अगर कहीं से भी शून्य पर हैं तो शीर्ष पर आने का फिर से प्रयास करिए, आप सफल होंगे। शुभकामनाएं, धन्यवाद, आभार।